Good morning, dear friends. Welcome to you in today's video lecture. Dear friends, we had seen the law of demand with the help of schedule as well as diagram also. In that particular lecture, we had seen that according to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. It means the law of demand explained by Alfred Marshall indicates inverse relation between price and quantity demanded. But today we are going to learn very important topic related to the law of demand, which is called as assumptions of the law of demand. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम लॉ ऑफ डिमांड के assumptions देखने वाले हैं. इसके पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड डिटेल एक्सप्लेन किया है. सो assumptions means conditions taken for explanation of the law. Before it we have seen that while we will explain any law in economic analysis, there are some stages like introduction, statement of the law, explanation of the law with the help of schedule, and diagram. It means we have to explain law with the help of diagram also. So these four stages related to the law of demand we have been completed in last lecture. Now today we are going to learn about the assumptions taken to explain the law of demand. So while we will explain assumptions of the law, so we first know that the meaning of the assumptions. Dear friends, assumptions means some particular conditions which is assumed to be constant. While we have seen the statement of the law, so we have seen that there are some things which has to be constant during the operation of the law, and therefore other things being equal, it is the first four words of the statement of the law. So other things means assumptions which is considered equal in the during the period of law. So assumptions means conditions which has to be constant during the operation of the law. So these conditions is considered as a assumptions of the law. So here there are many assumptions taken by Alfred Marshall to explain his law of demand. So first assumptions which is known as constant level of the income. So यदि हमें लॉ ऑफ डिमांड का अनुभव लेना है तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हमने ली है जिसे हम लॉ के असम्पशंस कहते हैं. तो उसमें पहली कंडीशन या पहला असम्पशंस कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम है, यानी कि उपभोक्ता की इनकम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, उपभोक्ता की इनकम कांस्टेंट रहती है. सो इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज फाइंड ट्रू, वी मस्ट हैव कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. तो हमारा इनकम कांस्टेंट होना चाहिए. There should not be increase in income as well as there should not be decrease in income. If income is changes, it may be increase or it may be decrease, then law of demand will not be applicable, and therefore it is assumed that consumer's income is remain constant. It means law of demand will be applicable when there is constant level of income, यानी कि उपभोक्ता की इनकम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए. यदि उपभोक्ता की इनकम में चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है. तो हम देखेंगे कि हाउ इट इज इम्पैक्ट ऑन लॉ ऑफ डिमांड. सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, एंड व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस लाइक इट, then even at increasing price also more units of the commodity will be demanded by the consumer. It means in this case if consumer income is increases, then
his purchasing power also increases, and as a result he may purchase more units of commodity even at increasing price. So here more units of commodity is demanded even at increasing price. It means law of demand is not applicable in this case. And what is the reason? Because increase in the consumer's income, and therefore we have assumed that there should not be change in consumers income. यदि उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है तो उस समय उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, और परचेसिंग पावर बढ़ने के कारण इंक्रीजिंग प्राइस पर भी वह ज़्यादा मात्रा परचेस करता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा की डिमांड होती है। इसलिए हमने ऐसा अजम्पशंस लिया है कि उपभोक्ता की इनकम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। इन द सेम वे इफ हिज इनकम इज डिक्रीजेस, यदि उपभोक्ता की इनकम कम होती है तो उस समय भी उसका लॉ ऑफ डिमांड पर असर होता है। जैसे कि इफ कंज्यूमर्स इनकम इज डिक्रीजेस देन लाइक इट देन हिज परचेसिंग पावर आल्सो डिक्रीजेस, एंड एज ए रिजल्ट then even at decreasing price also less quantity of the commodity will be demanded by the consumer. So here also law of demand is not applicable. Even at decreasing price he has demanded less units due to decrease in his income. Therefore consumer's income should be constant during the operation of the law. So उपभोक्ता की आय में यानी कि उसके इनकम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। यदि चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। देन सेकेंड अजम्पशंस इज कांस्टेंट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो इट इज अज्यूम दैट द प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इज रिमेन कांस्टेंट. इट मीन्स प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द particular time period. If any change in price of substitute goods will affects demand for the commodity, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो विच विल बी इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, एंड देयरफॉर प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द particular time period. Like here we have seen the example of substitute commodities like umbrella and raincoat, as well as tea and coffee is also considered to be a substitute goods of each other. Suppose price of tea increases, as per as law of demand is concerned, when price of the commodity is increases then quantity demanded of the commodity should be decreases. Like here suppose price of tea is increases then quantity demanded also increases. So it is against to the law, यानी कि जब टी की कीमत बढ़ती है तो भी उसकी डिमांड यदि बढ़ती है तो ये लॉ के अगेंस्ट है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, और उसका रीज़न है, क्या है रीज़न? तो उसका रीज़न है सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कॉफी की प्राइस में इंक्रीज होना, यानी कि अकॉर्डिंग टू टी के बारे में प्राइस बढ़ते हुए भी डिमांड बढ़ती है, और उसका कारण है इट्स सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कॉफी की प्राइस में इंक्रीज होती है। इट मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस देन इवन एट इंक्रीजिंग प्राइस आल्सो टी की डिमांड ज़्यादा होती है, यानी कि लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, और उसका कारण है कि सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कॉफी की प्राइस में इंक्रीज होना। इसलिए कांस्टेंट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स यह हमने अजम्पशंस लिया है। एज वेल एज सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि प्राइस ऑफ टी डिक्रीज होती है तो हमारे लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से टी की डिमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिक्रीजेस, सो अकॉर्डिंग टू आवर लॉ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी शुड बी इंक्रीजेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टी की कीमत कम होते हुए भी टी की डिमांड कम हुई है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ, और उसका कारण है, क्या है उसका कारण? तो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, इट मीन्स प्राइस ऑफ द कॉफी इज डिक्रीजेस हियर, एंड एज ए रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इज डिक्रीजेस इवन एट डिक्रीजिंग प्राइस आल्सो, और उसका रीजन है change in the price of substitute goods
copy, and therefore we have assumed that there is no change in the price of substitute goods also. यानी कि substitute goods की प्राइस में भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए. यदि चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता. देन थर्ड assumptions is constant price of complementary goods. यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत में भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए. वी हैव सीन दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स when two or more than two goods are required to satisfy single one, then these two or more than two goods is called as complementary goods. यानी कि एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए यदि हमें दो या दो से अधिक वस्तुओं की एक साथ जरूरत होती है तो वैसे गुड्स को हम एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं. और यहाँ पर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कांस्टेंट होना चाहिए. यदि उसमें चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता. सो इट इज अज्यूम दैट प्राइसेस ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स remain unchanged, remain constant, because a change in price of one good will affect the demand for another good also. यानी कि एक वस्तु की कीमत में चेंज होता है तो उसका दूसरे वस्तु के डिमांड पर इफेक्ट होता है. इसलिए हमने एज्यूम किया है कि प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आल्सो रिमेन कांस्टेंट. वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आल्सो लाइक कार एंड पेट्रोल. Like car and petrol are complementary to each other. Suppose price of car decreases. So according to law of demand, when price of a particular commodity decreases, then larger quantity of commodity will be demanded. उसकी डिमांड ज़्यादा होना चाहिए. But here, when price of car is decreases, then demand for car also decreases. It means law of demand is not applicable in this case. It means price of car decreases and quantity demanded of car also decreases. It means there is direct relation. Why? And reason is increase in the price of petrol, which is considered to be a complementary goods for car. यानी कि यहाँ पर कार की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइस की पेट्रोल में बढ़ने के कारण, यानी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण कार की कीमत कम होते हुए भी कार की डिमांड कम हुई है. यानी कि कार के बारे में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ और उसका कारण है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. इसलिए प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड बी रिमेन कांस्टेंट एज वेल एज देयर शुड नॉट बी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वह डिक्रीज होती है तो भी उसका अदर कमोडिटी के डिमांड पर इफेक्ट होता है. इसलिए वी हैव अज्यूम दैट कांस्टेंट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इट मीन्स प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड नॉट बी इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर टाइम. यानी कि वह समय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत में किसी भी प्रकार का इंक्रीज नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ सपोज प्राइस ऑफ कार इज इंक्रीजेस. कार की कीमत यदि बढ़ती है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार डिक्रीज होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम होना चाहिए. बट हियर प्राइसेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइसेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पेट्रोल, वो यदि डिक्रीज होती है तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पास भी कार होनी चाहिए. यानी कि इवन एट इंक्रीजिंग प्राइस आल्सो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार आल्सो इंक्रीजेस, एंड रीजन बिहाइंड इट is the decrease in the prices of complementary goods. It means decrease in the price of petrol. यानी कि यहाँ पर कार की कीमत बढ़ती हुई भी कार की डिमांड बढ़ी है. लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ कार के बारे में, और उसका कारण है कि पेट्रोल जो कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी कीमत में कम हुई है. पेट्रोल की कीमत यदि ज्यादा मात्रा में कम होती है तो हमें भी लगता है कि हमारे पास भी कार होनी चाहिए. यानी कि कार की बारे में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ, उसका कारण है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल. एंड देयरफॉर वी हैव अज्यूम्ड दैट देयर शुड नॉट बी चेंज इन prices of complementary goods. It means prices of petrol should not be increased as well as it should not be decreased. It should be remain unchanged. यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का चेंज
नहीं होना चाहिए, ये भी assumption हमने लिए है। Then next assumption is constant size of population, यानी कि पॉपुलेशन के साइज में भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज, एनी चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट द डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट, अनेक वस्तुओं की डिमांड उस देश में पॉपुलेशन क्या है उस पर रिलेटेड होती है। यदि पॉपुलेशन में इंक्रीज होती है या पॉपुलेशन डिक्रीज भी होती है तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए वी हैव अज्यूम दैट कांस्टेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज कांस्टेंट होना चाहिए तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। सो साइज ऑफ पॉपुलेशन इफ इट इज इंक्रीजेस, सपोज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस लाइक इट, यह इस प्रकार यदि किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है, इट मींस इफ साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस then number of consumer in a country also increases, and then even at increasing price more quantity of commodity will be demanded। तब वह यदि किसी देश की पॉपुलेशन ज्यादा मात्रा में बढ़ती है तो उस समय कीमत बढ़ने के बाद भी वस्तुओं की और सेवाओं की डिमांड बढ़ती है, यानी कि मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी डिमांडेड इवन एट इंक्रीजिंग प्राइस एंड इट इज अगेंस्ट टू द लॉ, और यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इस प्रकार यदि कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है तो इंक्रीजिंग प्राइस पर भी मोर डिमांड की जाती है, इसलिए हमने ऐसा अजम्पशन लिया है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड बी रिमेन कांस्टेंट, देयर शुड नॉट बी इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन लाइक दिस पिक्चर, एज वेल एज इफ साइज ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्रीजेस, यदि किसी कंट्री की साइज ऑफ पॉपुलेशन इस प्रकार यदि डिक्रीज होती है ज्यादा मात्रा में तो उस समय भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इट मींस साइज ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्रीजेस, देन एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर इन अ कंट्री विल बी डिक्रीजेस, एंड देन इवन एट डिक्रीजिंग प्राइस लेस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड, यानी कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा मात्रा में यदि कम होती है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर इन अ कंट्री विल बी डिक्रीजेस, एंड देन इवन एट डिक्रीजिंग प्राइस, यानी कि कम कीमत होते हुए भी डिमांड भी कम हो जाएगी, और उसका कारण है डिक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की साइज में ज्यादा मात्रा में डिक्रीज होना। इसलिए पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ पॉपुलेशन की साइज डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए। इट मींस देयर शुड बी कांस्टेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन, देन लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल, otherwise it will not be applicable। Then next assumption is no expectation about future changes in price, यानी कि प्राइस की वस्तु की प्राइस फ्यूचर में किस प्रकार से चेंज होगी इसके बारे में कंज्यूमर को किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। यदि कंज्यूमर ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, इट मींस प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी इंक्रीजेस इन फ्यूचर, देन in present even at increasing price also he will demand more quantity of the commodity। It means in present law of demand is not applicable because here he consumer expect that price of the commodity will be increases in future, and therefore he will demand more units of commodity even at increasing prices in present। तो इसलिए हमने ऐसा assumption किया है कि वस्तुओं की कीमत फ्यूचर में क्या होगी इसके बारे में कंज्यूमर को किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं है। यदि वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि वस्तु की कीमत फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है तो उस समय इन प्रेजेंट यदि वस्तु की कीमत बढ़ती भी है तो भी वह अपनी डिमांड प्रेजेंट में बढ़ाता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। हम ऐसा सोचते हैं कि पेट्रोल की कीमत आज 80 रुपीज पर लीटर है और कंज्यूमर यदि ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि वही पेट्रोल की कीमत आने वाले 4 दिन के बाद 80 रुपीज से डायरेक्टली 200 रुपीज पर लीटर होने वाली है, तो उस समय इन प्रेजेंट यदि पेट्रोल की कीमत 80 रुपीज से 90 रुपीज तक भी बढ़ती है तो भी मोर डिमांड फॉर पेट्रोल, वहां पर पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए इस प्रकार कंज्यूमर को
फ्यूचर प्राइस क्या होगी इसके बारे में किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। यदि वो होता है तो प्रेजेंट में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इन द सेम वे इफ ही एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी विल बी डिक्रीजेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में वस्तुओं की कीमतें ज्यादा मात्रा में कम होगी, इस प्रकार का यदि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है तो इन प्रेजेंट तो वर्तमान काल में वह कीमत कम होने के बाद भी अपनी डिमांड कम करता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। कीमत कम होने के बाद यदि डिमांड भी कम होती है तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुआ, और उसका कारण है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस, कि वस्तु की कीमत फ्यूचर में क्या होगी, इस प्रकार की यदि कंज्यूमर की अपेक्षा होती है तो उस समय वर्तमान काल में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ पर सोचते हैं कि पेट्रोल की कीमत आज 80 रुपीज है और कंज्यूमर का यदि एक्सपेक्टेशन है कि यही पेट्रोल की कीमत 8 दिन के बाद 10 रुपए तक कम होने वाली है, इट मींस प्राइसेस ऑफ पेट्रोल विल बी 10 रुपीज ओनली इन आफ्टर 8 डेज। इस प्रकार का यदि उसका एक्सपेक्टेशन होता है तो इन प्रेजेंट पेट्रोल की कीमत 80 रुपीज से 70 रुपीज तक भी कम होती है तो भी वह ज्यादा डिमांड करेगा क्या? नहीं, यानी कि डिमांड फॉर पेट्रोल विल बी लेस इवन एट डिक्रीजिंग प्राइस। And what is the reason? Because reason is consumers expectation regarding future price। तो इसलिए कंज्यूमर को फ्यूचर में वस्तु की कीमत कम होना होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, इस प्रकार का यदि उसका एक्सपेक्टेशन होता है तो वर्तमान काल में कीमत कम होते हुए भी वह डिमांड कम करेगा और लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड यदि एप्लीकेबल होना चाहिए तो हमें यानी कि कंज्यूमर को फ्यूचर में वस्तु की कीमत क्या होगी इसके बारे में किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। ये भी अजम्पशंस हमने यहाँ पर लिया है। देन नेक्स्ट अजम्पशन इज कांस्टेंट टेस्ट हैबिट रेफरेंसेस एंड फैशन एक्सेट्रा। इट मींस देयर शुड बी कांस्टेंट टेस्ट हैबिट रेफरेंसेस एंड फैशंस, यानी कि उपभोक्ता की टेस्ट हैबिट पसंदी और फैशन इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, these all are remain constant, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस एंड फैशंस ये समय के अनुसार चेंजेस होती है और समय के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। यदि हम ड्रेस का भी एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर आजकल इस प्रकार का ड्रेस फैशन में है, इट मींस फैशन इज चेंज एंड सच टाइप ऑफ ड्रेस इज फैशन, वह आजकल फैशन में है और फैशन में होने के कारण हर एक को ऐसा लगता है कि वी शुड वेयर सच टाइप ऑफ फैशनेबल ड्रेस, इस प्रकार का फैशनेबल ड्रेस हमें भी डिमांड करना चाहिए। इस प्रकार की एक साइकोलॉजी हर एक कंज्यूमर की होती है और उस समय यदि इस प्रकार के ड्रेस की कीमत बढ़ती भी है तो भी there will be more demand for such type of commodities। It means if particular commodity is in a fashion then even at increasing price more quantity of commodity will be demanded। तो यहाँ पर फैशन में चेंज होने के कारण लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हुआ है क्या? नहीं, इवन एट इंक्रीजिंग प्राइस मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एंड here law of demand is not applicable। and what is the reason? Reason is changes in the fashion। in the same way यदि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी आउट ऑफ फैशन होती है, फैशन के बाहर जाती है, आउट ऑफ फैशन यानी कि पुरानी होती है, तो उस समय जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ड्रेस which is considered to be a out of fashion dress particularly for girls। so here यदि वह आउट ऑफ फैशन होता है तो उस समय आउट ऑफ फैशन होने के कारण हमें इस प्रकार का ड्रेस पसंद नहीं आता, हमारी प्रेफरेंसेस चेंज होती है और प्राइस कम भी होता है इस प्रकार के ड्रेस की, तो भी देयर विल बी लेस डिमांड फॉर सच टाइप ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। इट मींस लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी डिमांडेड इवन एट डिक्रीजिंग प्राइस ड्यू टू आउट ऑफ फैशनेबल ड्रेस। इस प्रकार यदि किसी पर्टिकुलर ड्रेस आउट ऑफ फैशन होता है तो भी वहां पर कम कीमत पर भी कम डिमांड की जाती है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। अब आजकल हम देख रहे हैं कि चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, इस प्रकार की जो फास्ट फूड या जंक फूड है
उनके बारे में लोगों की पसंद थी, प्रेफरेंसेस ज़्यादा होने के कारण इवन एट इंक्रीजिंग प्राइस ऑल्सो देयर विल बी मोर डिमांड फॉर सच टाइप ऑफ जंक फूड्स। इट मीन्स यहाँ पर भी प्रेफरेंसेस टेस्ट हैबिट में चेंज होने के कारण ज़्यादा कीमत पर भी ज़्यादा डिमांड की जाती है, और इसलिए हमने ऐसा अज्यूम किया है कि देयर विल बी कांस्टेंट टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस etc. It means there should not be change. Then next assumption is constant taxation policy. It means there will be constant taxation policy of the government. Government की taxation policy में किसी भी प्रकार का change नहीं होता, क्योंकि taxation policy declared by government is also impact on quantity demanded by consumer. You know that there are two types of tax. There are two types of tax. One is direct tax. Example, we may take income tax, and another next tax is called as indirect tax. So suppose here we will take the example of direct tax. Suppose income tax is also example of direct tax. When rate of income tax is increases, जब यदि सरकार इनकम टैक्स की रेट बढ़ाती है, यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज करती है, इन रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीजेस, यानी कि इनकम टैक्स की रेट में यदि इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पर कैसा होता है वो भी हम देखेंगे कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीजेस, और उस समय यदि वस्तु की कीमत कम भी होती है तो भी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी विल बी डिक्रीजेस। हियर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि कम कीमत पर भी डिमांड क्या हुई है? कम हुई है, यानी कि even at decreasing price less quantity of commodity is demanded here. It means law of demand is not applicable. वस्तु की कीमत कम होती है तो भी डिमांड कम हुई है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ, और उसका कारण है चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, और इन अनदर वर्ड इंक्रीज इन इनकम टैक्स रेट्स, इनकम टैक्स के रेट में इंक्रीज होना। अब यदि रेट इनकम टैक्स की रेट में यदि इंक्रीज होती है तो उसका कंज्यूमर के परचेसिंग पावर पर इफेक्ट होता है, और परचेसिंग पावर पर इफेक्ट होने के कारण वह कम कीमत पर भी कम डिमांड करता है। हम ऐसा सोचते हैं कि रेट इनकम टैक्स के रेट यदि 10% है, यानी कि 100 में से 10 रुपीज वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट एज ए इनकम टैक्स। अब डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल बी 90 रुपीज। अब यहाँ पर कंज्यूमर का डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च योग्य उत्पन्न कितना है? तो 90 रुपीज है, क्योंकि 10 रुपीज उसने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के रूप में दिए हैं। अब यदि वही इनकम टैक्स के रेट में चेंज होता है और गवर्नमेंट ने 10 रुपीज से डायरेक्टली 40% तक यदि इनकम टैक्स के रेट बढ़ते हैं या बढ़ाए हैं, तो उस समय 100 रुपीज में से 40 रुपीज वी हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट एज ए इनकम टैक्स। अब उसके पास खर्च व्यय शक्ति उत्पन्न इनकम कितना है? तो ओनली 60 रुपीज। कितने हैं? ओनली 60 रुपीज, क्योंकि 40 रुपीज गिवन टू द गवर्नमेंट एज ए टैक्स and remaining 60 rupees will be his actual disposable income. Then in this case, even at decreasing price, he will demand less quantity of a commodity. यानी कि इनकम टैक्स की रेट में यदि इंक्रीज होता है तो उपभोक्ता की परचेसिंग पावर कम होती है, और उसके कारण कम कीमत पर भी वह कम मात्रा डिमांड करता है। इन द सेम वे यदि इनकम टैक्स की रेट डिक्रीज होती है तो उस समय क्या होता है? देखो, if consumer has decided to decrease in rate of income tax, यदि कंज्यूमर ने इनकम टैक्स के रेट इनकम टैक्स के रेट यदि डिक्रीज करने का डिसीजन यदि गवर्नमेंट लेती है तो उस समय भी उसका कंज्यूमर के परचेसिंग पावर पर इम्पैक्ट होता है। यदि इनकम टैक्स की रेट कम होती है तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ती है, और एज ए रिजल्ट इवन एट इंक्रीजिंग प्राइस मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। तो उस समय कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पर भी ज्यादा डिमांड करता है। इट मींस मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड बाय हिम इवन एट इंक्रीजिंग प्राइस। इट मींस यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स के रेट कम होने के कारण अब यदि 10% से यदि 1% तक इनकम टैक्स के रेट यदि कम होते हैं तो नो डाउट हिज एक्चुअल इनकम विल बी इंक्रीजेस, 99 तक बढ़ता है, और एज ए रिजल्ट इवन एट इंक्रीजिंग प्राइस he may demand more units of the commodity, and therefore we have assumed that there should not be change in
government tax policy or rate of taxes should be remain constant, as well as there should not be change in indirect taxes also. So GST will be the example of indirect tax. It means direct tax as well as indirect tax. In another word, government taxation policy of the government should remain constant. If there is change, it will be impact on consumers' purchasing power, and as a result, even at decreasing price, less quantity will be demanded, as well as even at increasing price, more quantity will be demanded. Therefore, हमने यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया है कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार आज हमने assumptions of the law of demand देखे हैं, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड के assumptions आज हमने देखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी assumptions आज हमने देखे हैं वो आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात हुए हैं। निश्चित तौर पर आप सभी को यह समझे हुए हैं। इस प्रकार का एक आशावाद व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।